Grace and peace to you all from our Lord and Savior Jesus Christ. अनुग्रह और शांति हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को मिलती रहे। I consider it my privilege to stand before you all and share from His living word. और मैं अपने लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात समझता हूँ कि परमेश्वर के जीवित वचन को आप सभी के सामने बांटने पा रहा हूँ। We all know how tragic this year has been for many people around the world. और हम सभी जानते हैं कितना त्रासदी भरा साल ये साल रहा है इस संसार के सभी लोगों के लिए। Beginning from what happened in Manipur in month of May to what's happening in Israel and Palestine from last month. अगर शुरुआत में देखी जाए जो मणिपुर में मई के महीने से शुरू हुआ और जो आज के दिन में फलस्तीन और इजराइल में हो रहा है। Millions of people in our world today are living in aftermaths of various tragedies. और बहुत से लोग जो हैं इस त्रासदी के परिणामों में आज भी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। What sort of messages can we give to all those people? हम किस प्रकार के संदेशों को इन लोगों को दे सकते हैं? To all those victims of war and violence. जो कि उस युद्ध और हिंसा से पीड़ित हैं। What should we do if we are put into such kind of tragic circumstances? और हम क्या करेंगे अगर हम ऐसी दुखद परिस्थिति में पड़ जाते हैं तो? Let's learn it from a familiar person in our Bible. और एक बहुत ही सुपरिचित व्यक्ति के जीवन से हम आज सीखेंगे। Please turn with us to Psalm 61. और आइए हमारे साथ भजन 61 की ओर अपने वचनों को खोलेंगे। Psalm 61, Brother Chobik Sang will help us in reading. Psalm 61. Lead me to the rock, to the choir master with the string instruments of David. Hear my cries, O God. Listen to my prayer. From the end of the eye, I call to you when my heart is faint. Lead me to the rock that is higher than I. For you have been my refuge, a strong tower against the enemy. Let me dwell in your tents forever. Let me take refuge under the shelter of your wings. For you, O God, have heard my voice. You have given me the heritage of those who fear your name. Prolong the life of the king. May his year endure to all generations. May he be enthroned forever before God. Appoint steadfast love and faithfulness to which were him. So will I ever sing praises to your names, as I perform your voice day after day. Thank you. This psalm is an individual lament composed by David when he was fleeing from his son Absalom. और ये भजन जो है व्यक्तिगत विलाप है दाऊद का जो अपने बेटे अबशालोम से बच के भाग रहा था। We can derive this context by looking at the information that's available within this psalm and by comparing it with the psalms that are succeeding and preceding. और इसके संदर्भ को हम जो सूचनाएं इस भजन में दी गई हैं उससे संदर्भ को पा सकते हैं जो उन भजनों से पा सकते हैं जो इसके पहले और इसके बाद में लिखे गए हैं। And this whole tragedy of David fleeing away from his son can be observed in second book of Samuel chapters 15 to 19. और ये त्रासदी की दाऊद अपने बेटे अबशालोम से बच के भाग रहा है इसको हम दूसरा सामुएल की पुस्तक में और उसके 15 से 19वें अध्याय में हम देख सकते हैं। This psalm presents a unique response that David gives to his tragedy. और ये जो भजन है एक बहुत ही अनोखे प्रत्युत्तर को प्रस्तुत कर रहा है जो दाऊद अपनी त्रासदी के प्रति दे रहा है। So let us meditate upon this ancient song under the title Making Melodies in Tragedies. तो आइए इस भजन को इस शीर्षक के अंदर मनन करेंगे कि त्रासदियों के समय में संगीत या रागों को बनाना। Making Melodies in Tragedies, Christian Response to Crisis. और त्रासदियों के समय में रागों को बनाना संकट के समयों में मसीह प्रत्युत्तर। The word melody comes from two Greek words actually, which means to sing a song. और यहाँ पे जो मेलोडी शब्द है वो दो यूनानी शब्दों से मिलकर आता है उसका मतलब ये निकल के आता है कि एक गीत को गाना। It could be a happy song or a sad song also. ये हो सकता है कि कोई खुशी भरा गीत हो या फिर दुख भरा या गम भरा गीत हो। And we all know what crisis means. It's plural of crisis, which means a difficult time in which we need help from someone. और हम सभी ये शब्द जो क्राइसिस उसका मतलब जानते हैं जिसका मतलब संकट निकल के आता है। The first response that David gave to his tragedy was making melodies from the fullness of his heart. और जो पहला प्रत्युत्तर दाऊद अपनी त्रासदियों को देता है वो ये है कि अपनी हृदय की पूर्णता से वो परमेश्वर के लिए रागों या संगीत को बनाता है। Making melodies from the fullness of heart verses 0, 1 and 2. और अपने पूरे हृदय से परमेश्वर के लिए रागों को बनाता है आयत 0, 1 और 2। You might be wondering what verse 0 means. और आप सोच रहे होंगे ये आयत 0 क्या चीज है? It's the superscription. Pastor Nate had already told about it while he was preaching from Psalm 52. और ये जो है ये एक शीर्षक के समान है जो पास्टर नेट जब वो प्रचार कर रहे थे उन्होंने हमको ऐसा बताया था। So there are at least 73 Davidic psalms in the whole Psalter.
और हम देखने पाते हैं कि पूरे भजन की किताब में 73 भजन है जो दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। But do you think that David had written, I mean, he prayed only for 73 times in his whole life? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि दाऊद ने केवल 73 बार ही अपने जीवन में प्रार्थना की? No, if we count even one prayer per day, it will become 365 prayers in a year. नहीं, ऐसा नहीं। अगर हम एक प्रार्थना को एक दिन के अनुसार गिनेंगे तो एक साल में 365 प्रार्थनाएं हो जाएंगी। But why are only 73 psalms or prayers of David recorded in Bible? लेकिन ऐसा क्यों है कि केवल 73 भजन या प्रार्थनाएं जो दाऊद के द्वारा की गई वही यहाँ पे लिखी गई हैं? Because these 73 psalms were carefully crafted by using poetic skills and musical artistry. क्योंकि ये जो 73 जो भजन थे वो बहुत ही ज्यादा अनोखी रीति से जो काव्यात्मक कला है और जो संगीत वर्ग है उसके द्वारा वो रचे गए हैं। In verse 1 he says, Hear my cry, O God, listen to my prayer. और वो पहली आयत में इस रीति से कहता है कि परमेश्वर मेरी कराहट को सुनो, मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। From that first verse itself we can see the poetic manifestation of David. और यहाँ पे हम पहली आयत से यहाँ पे काव्यात्मक प्रकटीकरण को जो दाऊद करता है उसको हम देखने पा सकते हैं। This verse contains something called a synonymous parallelism. और यहाँ पे ये जो आयत है एक ऐसे समानार्थी एक समानता को वहाँ पे रखता है। Like we have rhyming words in English poetry, there are rhyming ideas in Hebrew poetry. जिस प्रकार की अंग्रेजी भाषा में तुक वाले शब्द होते हैं उसी प्रकार इब्रानी काव्यतिक में तुक वाले विचार एक समान होते हैं। Not just that one verse, but all the 8 verses, and not only those 8 verses, but the whole Psalter. There are at least 2400 verses in whole book of Psalms, and all of them have this unique feature. केवल पहली आयत में ऐसा हम नहीं देखने पाते, वरन इस भजन की 8वां आयत में और केवल इन 8वां आयत में नहीं, पूरे भजन में जिस पूरे भजन की किताब में 2400 आयतें हैं उसमें हम इन चीजों को देखने पा सकते हैं। Now going further, in second verse he says, ends of the earth. और दूसरी आयत में जाके वो कहता है कि पृथ्वी के छोरों तक। Many Old Testament theologians suggest that the ends of earth could mean the city of Jerusalem. और बहुत से धर्म वैज्ञानिक जो पुराने नियम के इस रीति से कहते हैं कि जो पृथ्वी के छोर है वो यरूशलेम का अंत के समान या उसकी छोर के समान वहाँ बताया गया है। Some of them say it's Sheol, the underworld. और कई लोग कहते हैं कि ये कब्र के समान है जो एक मृत्यु का धाम है। But I would say that the ends of earth for David meant the deepest bottom of his heart. लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि दाऊद के लिए जो ये पृथ्वी के छोर है उसके हृदय की गहराइयाँ हैं। It is from the full measure of his heart that David expresses his deep sorrow. और वो अपने पूरे हृदय की गहराई से परमेश्वर को अपने हृदय के शोक को प्रकट कर रहा है। He says, my heart grows faint. और यहाँ पे वो इस रीति से कहता है कि मेरा हृदय तो टूटता जा रहा है। His heart grew faint because his own son was trying to kill him. और उसका हृदय इसलिए टूट रहा है क्योंकि उसका अपना ही बेटा उसके प्रति विद्रोह कर रहा है। Therefore he was pleading to God by saying, lead me to a rock that's higher than I. और इसलिए परमेश्वर से वो विनती कर रहा है कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी चट्टान पे लेके जा जो मुझसे ऊंची हो। Walter Brueggemann, a prominent OT scholar, suggests that this metaphor of a rock could mean the Mount of Zion. और यहाँ पे वॉल्टर ब्रुगमैन जो एक पुराने नियम के एक बहुत ही जाने पहचाने विद्वान है वो इस रीति से कहते हैं कि ये जो रूपक है जो चट्टान है ये एक सियोन के पर्वत की जैसे वहाँ पे देखा गया We है। know that the Jewish palace, the temple and the whole city of Jerusalem was built on that Zion. और हम सभी जानते हैं कि यहूदी महल मंदिर और हर एक चीज जो उस शहर में थी वो इसी ऐतिहासिक पर्वत पर स्थित है। The Hebrew syntax of this word, a rock that is higher than I, could mean a rock that is high for me to climb up now. अगर इब्रानी सिंटेक्स में इसको देखा जाए तो उसका इसी रीति से मतलब निकल के आता है कि एक ऐसी चट्टान जो मुझे चढ़ने के लिए अभी कठिन है। So David was simply asking, I just want to go back to that Mount of Zion, my home. और वो आसान रीति में यहाँ पे दाऊद इस रीति से कह रहा है कि मुझे अपने उसी जो पहाड़ है जो यरूशलेम में उसकी ओर मुझे वापस जाना है। How are we responding to our crisis times, dear friends? और हम अपनी संकट के समयों का कैसे प्रत्युत्तर देते हैं मेरे मित्रों? Where is all our focus directed to? और हमारा सारा केंद्र किस जगह पे लगा हुआ है? Are we focusing on some human agencies or we are focusing on God? और क्या हम किसी मनुष्य की ओर अपनी नजरों को लगाए हैं या हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाए हैं? David was not thinking that some political powers or military strength should come and rescue him. और वहाँ पे दाऊद इस रीति से नहीं सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज है जो सैनिक सामर्थ्य है या फिर जो राजनीतिक सामर्थ्य वो आके उसकी छुड़ौती करेंगी। All he did was he used all his brains and brawns to glorify God. और उसने केवल इतना किया कि अपनी सारी बुद्धि और ताकत लिया परमेश्वर के लिए। So let's learn this from David. और आइए हम इस चीज को दाऊद से सीखें। Let's learn how to use all our abilities, our whole heart to praise God even in our troubled times.
तो आइए हम सीखे दाऊद से कैसे अपनी योग्यताओं को, अपने पूरे हृदय को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Now looking at the second response that David gives to his tragedy, और अगर हम दूसरे प्रति उत्तर को यहाँ देखने पाते हैं जो दाऊद अपनी त्रासदी के प्रति देता है, which is in verses 3 and 4, जो कि तीसरी और चौथी आयत में है, we can understand these two verses under the title Making Melodies about the faithfulness of God. और इसको हम इस शीर्षक पर देख सकते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए रागों को बनाना या ध्वनियों को बनाना। In these two verses, in verses 3 and 4, David seems to express his gratitude for what God has done to him in the past. और ऐसा प्रतीत होता है कि इन दो आयतों में दाऊद अपने धन्यवादितपन को इन दो आयतों में लिख रहा है जो परमेश्वर ने उसके भूत में उसके साथ किया। He says, God, you have been my refuge, a strong tower against the foe. और इस रीति से कहता परमेश्वर मैं तो तू तो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा और मेरी सहायता ठहरा है। David believes in God's deliverance because he did see that deliverance in his past. और दाऊद परमेश्वर की छुड़ौती पर भरोसा रखता है क्योंकि उसने भूत में परमेश्वर की छुड़ौती को देखने पाया है। We all know what kinds of perils David had to go through in his previous life. और हम सभी जानते किस प्रकार की चुनौतियां विपरीत परिस्थितियों से दाऊद को अपने जीवन में होकर गुजरना पड़ा था। Beginning from the phase of shepherding a flock to the stage of becoming a noble shepherd of Israel. और शुरुआत में भीड़ों के चराने वाले से एक महान इजराइल के चरवाहे की ओर। How many wars, wounds, fleas and traumas could he have? और कितने ही बार युद्ध और कितने ही घाव और कितना ही सदमा उसने अपने जीवन में महसूस और अनुभव किया होगा। So David believed that the same God who helped him in his past will definitely help him in his present crisis. और वो दाऊद इस रीति से यहाँ पे सोचने पाता, विश्वास करने पाता है कि वो परमेश्वर जो भूत में उसकी सहायता किया वो आज भी उसके संकटों में उसकी सहायता करेगा। That's why he says, I long to take refuge under your wings again. और इस रीति से वो कहता है, इसलिए वो कहने पाता है कि मैं फिर से लालसा रखता हूँ कि तेरे पंखों के तले शरण को पाने पाऊँ। Can the same God who helped a young man to fight against this terrible beast save us today? क्या वो सामान्य परमेश्वर जो दाऊद की मदद किया इतने ज्यादा विरोधियों से लड़ने के लिए, क्या वो हमारी मदद नहीं करेगा आज? Especially from those people who are behaving like animals and savages. और खासकर उन मनुष्यों से जो कि असभ्य और जानवरों के समान बर्ताव कर रहे हैं। Doesn't the same God who helped him in defeating thousands of warriors have strength to heal and restore our conditions today? क्या वो सामान्य परमेश्वर जो इतने ज्यादा योद्धाओं के ऊपर दाऊद को जयवंत बनाता है वो हमको आज चंगाई या हमको पुनः स्थापित नहीं करेगा? Let's not doubt in God's power, dear friends. और आइए मित्रों, हम परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह ना करें। Let's not become weak in our faith during our crisis times. और हमारे संकट के समय अपने विश्वास में हम कमजोर ना पड़ जाएं। Instead, let us take time to listen to the old sounds of God's faithfulness in our life. और इसके बजाय हम उन ध्वनियों को याद करें जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता की हमारे भूत में। And let's proclaim about His miracles to those who have lost their hope. आइए और उसके कार्यों को, उसके चमत्कारों को उन लोगों तक प्रचार करें जिन्होंने अपने जीवन में आशा को हार चुके हैं। Making a melody means arranging our intense emotions in a systematic manner. और यहाँ पे ध्वनियों को बनाना या रागों को बनाना इस रीति से है कि एक गहरे भाव को व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे जमाना। Now let's look at the third response that David gives to his tragedy. तो आइए हम तीसरे प्रति उत्तर को देखें जो दाऊद अपनी त्रासदी को देता है। Making melodies about our own shortcomings. और अपनी ही कुछ कमियों के प्रति उन रागों को या ध्वनियों को बनाना। Making melodies about our own shortcomings, verses 5 and 8. और 5वीं से 8वीं आयत अपनी कमियों के प्रति, अपनी कमियों के लिए रागों और ध्वनियों को बनाना। In verse 5, the singer says that God, you have heard my vows. और यहाँ पे 5वीं आयत में जो गीतकार है इस रीति से कह रहा है कि परमेश्वर तूने मेरी मन्नतों को तो सुना है। And then in verse 8 he says, I will fulfill my vows. और 8वीं आयत में वो कहता है कि मैं अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा। There is a latent gap of time between these two verses. और इस समय के बीच में एक छुपा हुआ अंतर है। It's a time when he is not performing his vows. और यहाँ पे एक ऐसा समय जहाँ वो अपनी मन्नतों को वहाँ पे कार्य में नहीं ला रहा है। It's the time of his tragedy. और ये उसकी त्रासदी का समय है। He is unable to fulfill his vows because he is not in the holy city. और वो अपनी मन्नतों को इसलिए नहीं पूरा करने पा रहा है क्योंकि वो पवित्र शहर में नहीं है। In 2 Samuel we can see the whole context how he flees away from Jerusalem city. और दूसरे शमूएल में हम पूरे संदर्भ को देखने पा सकते हैं कि कैसे दाऊद उस पवित्र नगर से भागा। A vow can be anything. It's simply saying to God that if you listen to my prayer, I'll do this to you.
और एक मन्नत कुछ भी हो सकती है, आसान रीति से कहें कि अगर परमेश्वर आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। Just like how Hannah did. If you give me a son, I'll give it back to him. और ये आसान रीति से देख सकते हैं, हन्ना ने भी इसी रीति से कि अगर आप मुझे एक पुत्र देंगे तो मैं उसको आपके लिए समर्पित कर दूंगा। Why did this tragedy happen in David's life? और दाऊद के जीवन में त्रासदी क्यों आई? Why had he run away from his own son? और वो क्यों अपने ही पुत्र से भाग रहा है? It was because of the great sin that David had committed before. और ये बहुत ही महान पाप जो दाऊद ने किया था उसकी वजह से है। I already told you that the background of this psalm is in 2 Samuel. और जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसकी पृष्ठभूमि दूसरे शमूएल में है। And interestingly, this tragedy of David fleeing from his son is put next to the drama in which he commits sin with Bathsheba. और अच्छी रीति से अगर देखा जाए तो दाऊद का ये भागना उसी हादसे के बाद हुआ जो दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया है। In chapter 11 we read about David's sin with Bathsheba and her husband Uriah the Hittite. और यहाँ पे हम देखने पाते हैं 11वीं आयत में कि दाऊद का वो पाप जो उसने बैतशेबा के विरोध में किया। In chapter 12 we see Nathan coming to David and proclaiming God's curse upon him. और हम देखने पाते हैं 12वें अध्याय में कि नाथान भविष्यवक्ता आता और उसके ऊपर श्राप को बोल के जाता है। And from chapters 13 to 17 we see the unfolding of that curse. और हम 13वें से 17वें आयत में उस श्राप को खुलने की ओर देखते You हैं। can read 2 Samuel chapters 12 to 17 later. और आप दूसरा शमूएल 12 से 17 को बाद में पढ़ सकते हैं। Therefore some of our tragedies could be results of our own actions. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन की त्रासदी हमारी कामों की वजह से हुई हो। The intensity of our tragedy depends upon the measure of sin that's performed by us. और हमारी त्रासदी की तीव्रता उतनी ही होगी जितना अधिक पाप हमने किया होगा। The sin of a family member could cause a family level tragedy. और एक परिवार के सदस्य का पाप एक पारिवारिक त्रासदी की ओर लेके जा सकता And the है। sin of a large community could lead to a global level threat. और एक बड़े समुदाय का पाप जो सामूहिक स्तर पे विपत्ति को लेके आ सकता So है। this morning let us take time to think about the mistakes which have led for the tragedies to occur in our life. और आइए हम आज की सुबह उन चीजों पर ध्यान दें, उन चीजों को याद करें जो पाप हमने की, जो हमारी त्रासदी की ओर हमको लेके गया। Let's pray for our fellow community members whose sins could have brought great disasters around us. और आइए अपने संगी जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें जिनकी पापों की वजह से वो त्रासदी की ओर चले गए हैं। God does not leave us in our crisis times, dear friends. और मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर हमको संकट के समयों में नहीं त्याग देता है। If we orient our thoughts towards Him and trust in His ability to forgive us, He'll definitely help us. अगर अपने विचारों को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे और विश्वास करेंगे कि वो हमको क्षमा कर सकता है, वो हमको ऐसा निश्चित रीति से करेगा। Therefore, let's learn how to make tunes of confession and repentance. इसलिए आइए हम सीखें कि कैसे अंगीकार और मन फिराव की ध्वनियों को हम प्रस्तुत करें। Now, looking at the final response that David gives to his tragedy, तो आइए हम अंतिम प्रत्युत्तर को देखें जो दाऊद अपनी त्रासदी के प्रति देता है, which is in verses 6 and 7, जो कि 6वीं और 7वीं आयत में है। making melodies about the messianic age. और मसीही की युग के बारे में एक धुनों या ध्वनि को बनाना। Making melodies about the messianic age, verses 6 and 7. और 6वीं से 7वीं आयत मसीह की युग के लिए ध्वनियों को बनाना। In verse 6, David says, increase the days of the king's life for many generations. और 6वीं आयत में दाऊद इस रीति से कहता है कि अपने राजा के युग आयु को बढ़ा दे बहुत सी पीढ़ियों के लिए। David was referring to himself as the king here. और दाऊद अपने आप को यहाँ पे राजा के समान बता रहा है। He was doing this prayer by believing in the everlasting promise that God made with him in 2 Samuel. और वो इस प्रार्थना को इस चीज पर विश्वास करते हुए कर रहा है जो वाचाएं, जो वायदे परमेश्वर ने उससे दूसरा शमूएल 7 के 16 में किए हैं। We'll read that Bible verse, 2 Samuel 7:16. और आइए हम इस बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 7 उसका 16। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदा बनी रहेगी। So this whole psalm seems to be a paraphrased version of 2 Samuel chapter 7 verses 5 to 16. तो ये पूरा भजन संक्षिप्त भाग है, संक्षिप्त रूप है दूसरे शमूएल 7 उसके 5 उससे 16 की ओर का। David uses the content of God's revelation and promise to him as the lyrics of his new melody. और दाऊद यहाँ पे अपने नए गीत के लिए, नई ध्वनियाँ, नए राग के बोलों के लिए यहाँ पे परमेश्वर के प्रकाशन और उसके वायदों को स्रोत के समान इस्तेमाल कर रहा है। In verse 7 he asks God to bestow his mercy and truth for the king. और 7वीं आयत में वो परमेश्वर से इसी रीति से कह रहा है कि अपनी दया और सत्य को परमेश्वर तू उंडेल दे। In Psalm 61 verse 7
Some of your translations might have love and faithfulness. और 7वीं आयत में भजन 61 की 7वीं आयत में आपके अनुवाद हो सकते हैं, वहाँ पे प्रेम और विश्वास योग्यता का शब्द इस्तेमाल किया गया हो। But the original Hebrew words used there are emet and hesed. और यहाँ पे लेकिन जो मूलभूत इब्रानी भाषा के शब्द वहाँ पे इस्तेमाल हुए जो एमेत और हेसेद हैं। Emet means truth and hesed means faith, mercy. और यहाँ पे जो एमेत का मतलब आता है कि सच्चाई और जो हेसेद का मतलब आता है वो निकल के वो दया है। Both these words explain about the covenantal convictions of Israelites. और दोनों ही शब्द यहाँ पे इजराइल के वाचायिक जो कायलता थी उनकी जो परमेश्वर के साथ उसको दर्शा रहा है। And these two verses portray the eternal worldview of David. और यहाँ पे ये जो 2 आयतें हैं यहाँ पे दाऊद के अनंत काल की दृष्टिकोण को दर्शा रही He है। recognized that he did not earn the position of the king by his own merits, but it was God who made him a king. और वो यहाँ पे इस चीज की पहचान करने पा रहा है कि वो खुद नहीं है जिसकी वजह से वो राजा बना हुआ है, वो परमेश्वर है जिसने उसको राजा बनाया है। That's why he says, increase the days of the king. It's not me, increase my days. और वो इसलिए इस रीति से कहता है कि तू राजा की आयु को बना दे, वो इस रीति से नहीं कह रहा कि तू मेरी आयु को बढ़ा दे। He believed that God would deliver him out of his tragedy because God gave him promise of eternal preservance of his throne. और वो इस रीति से इसलिए विश्वास करने पा सकता है कि परमेश्वर उसकी त्रासदियों से उसको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनंत काल की वाचाओं के वायदे दिए थे। And we all know that eternal promise of a king living throughout all generations was fulfilled by Jesus Christ. और हम देखने पा सकते हैं कि वो जो वायदा जो अनंत राजा के राज्य का था वो मसीह यीशु के द्वारा पूरा हुआ। It was the Messiah who was born from lineage of David, whose days were until eternity. और ये जो मसीहा था जो दाऊद के वंशज से आके जिया, जिसका राज अनंतता के लिए था। Troubles are there in this world. और जो संकटें हैं वो इस संसार में रहेंगी ही। We see wars, conflicts and dark forces working behind to destroy people's lives. और हम देख सकते हैं युद्धों को, झगड़ों को, और जो दुष्ट की अंधकार की सामर्थ्य लोगों के पीछे कार्य करते हैं हम उनको देख सकते But हैं। what is the solution to all these problems? लेकिन इन सब समस्याओं का समाधान आखिर क्या है? To what's happening in all parts of our world? तो जो चीजें इस पूरे संसार में हो रही हैं, It's only the eternal reign of God. ये केवल परमेश्वर का अनंत राज्य का यहाँ पे राज्य होना है। Not the reign of a human king, but the reign of a godly king. केवल किसी एक मानवीय राजा का राज्य नहीं, वर एक अनंत राजा का राज्य है। It's the reign of the Messiah. और ये एक मसीहा का राज्य है। How many of you believe in this kingdom? और क्या आप में से कितने लोग इस राज्य पर विश्वास करते How हैं? many of you believe that this messianic age has power to transform all our tragic circumstances? और कितने लोग हम में से विश्वास करते हैं कि ये मसीही युग में सामर्थ्य हमारी हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए है? Don't we believe that Jesus is working behind all these kingdoms which are fighting against each other? क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन सारे राज्यों के पीछे कार्य कर रहा है जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं? So as Christians, the followers of Messiah, और मसीह होने के नाते और जो मसीहा का पीछा करते हैं, let us make efforts to identify our roles in that kingdom. तो आइए हम अपनी पहचान, अपनी जिम्मेदारियों की पहचान करने पाए उस राज्य में। Let's ask like the psalmist had asked, increase the days of your servant. और यहाँ पे इस रीति से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने दास की आयुओं को तू बढ़ा दे। Let's ask for God's mercy to help us in fulfilling our responsibilities in that kingdom. और आइए परमेश्वर से उसकी दया को मांगे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को जो उसके राज्य में हमारी हैं उसको हम पूरा करने पा सकें। If Messiah rules in Manipur, who will have to fight for land and heritage anymore? और अगर मसीहा मणिपुर में राज करता है तो किसको जमीन और ऐसी चीजों के लिए लड़ना पड़ेगा? If God intervenes in the chaotic administration of Myanmar, Ukraine, Palestine and India, और अगर परमेश्वर ऐसी विपदाजनक प्रशासन में जो म्यांमार में है, इजराइल में, फलस्तीन और भारत में है, which strong enemy should we have to fear? और कैसे एक बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य शत्रु का हमको डर खाने की If the आवश्यकता है? Prince of Peace reigns in hearts of every individual who is persecuting us, अगर शांति का जो राजा जो हर एक हृदय में राज करता है जो हमारे क्यों विरोध में है, why should we become sad at all? तो हम क्यों आखिर दुखी हो जाएंगे? Therefore, let us learn to make a melody about the kingdom of God. इसलिए आइए हम सीखे उन ध्वनियों को या उन रागों को बनाना परमेश्वर के राज्य के लिए, Let's pray for it and strive to be part in it. और हम उसके लिए प्रार्थना करें और लालसा रखें कि हम उसका एक भाग बन जाएं। I myself have been trying to master this art lately. और मैं भी इस कला पर बहुत ही ज्यादा सीखने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। There has been a little tragedy in our home in the beginning of this year, and from then
I was trying to make melodies to God. और इस साल की शुरुआत से ही मेरे घर परिवार में कुछ ऐसी त्रासदियां हो रही हैं और उसी समय से लेकर मैं उन चीज़ों में ध्वनियों या रागों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। I was praying to God that God lead me to a rock that's higher than I. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी चट्टान की ओर लेके जा जो मुझसे ऊंची हो। I would suggest the same to you all. और मैं आपके लिए भी ऐसा ही बोलूंगा। Even if we are going through tough times, और अगर हो सकता है हम कठिन समयों से भी होकर गुजर रहे let's हो, learn how to make new melodies to God. तो आइए हम उन परिस्थितियों में से कैसे परमेश्वर के लिए नई ध्वनियों को हम बनाएं। Let's learn how to create music out of sadness, formulate philosophies out of pain, and make theology out of trouble. तो आइए हम सीखें कैसे दुखों में से हम उस संगीतों को बनाना सीखें, कठिनाइयों में से उस दर्शन या उस ज्ञान को बनाना सीखें और कठिनाइयों में से धर्म विज्ञान या शिक्षा को बनाना Let's सीखें। make new melodies to God so that He'll make new changes in our lives. तो आइए हम परमेश्वर के लिए नए रागों को बनाएं ताकि वो हमारे जीवन में एक नया काम करने पा सके। Let our prayers become more meaningful and profound. और आइए हमारी प्रार्थनाएं बहुत ही ज्यादा मतलबपूर्ण और गहरी होने पाए। Let our yearnings for God come out from the deeper levels of our being. और हमारे लिए हमारे अंदर जो परमेश्वर की पुकार है हमारे हृदय की गहराइयों से निकलने पाए। Let's make melodies from the fullness of our heart. आइए हम अपने परमेश्वर के लिए पूर्ण हृदय से परमेश्वर के लिए ध्वनियों को बनाएं। Let's make melodies about the faithfulness of God, आइए परमेश्वर के लिए रागों या ध्वनियों को उसकी विश्वास योग्यता के लिए बनाएं। about our own shortcomings, और हमारी अपने ही कमियों के लिए about the messianic age. और मसीही युग के लिए। I would like to dedicate a Bible verse to all those people who are suffering through tragedies. और मैं एक बाइबल की आयत को समर्पित करना चाहता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो वहाँ पे जूझ रहे हैं। We'll read that verse and we'll conclude this session with a word of prayer. और आइए हम इस आयत को पढ़ेंगे और संक्षिप्त करेंगे अपने संदेश को। Isaiah chapter 35 verse 10. यशायाह उसका 35 उसका 10। And the redeemed of the Lord will return and come to Zion with joyful shouting, and everlasting joy will be on their heads. They will obtain gladness and joy, and sorrow and sighing will flee away. यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उसके सर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांसें लेना जाती रहेगी। Let's close our eyes and pray. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें।